BBC اردو کے پروگرام سربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. پاکستان میں بین الاقوامی غیر سرکاری امدادی اداروں پر پابندی برقرار. تھر پارکر جیسے پسماندہ علاقوں میں مثبت کردار ادا کرنے والی ان تنظیموں کی غیر موجودگی کیا معنی رکھتی ہے؟ گوادر میں پانی کی قلت ایک بڑا مسئلہ. کیا چینی پلانٹ سے پانی کی دستیابی لوگوں کی ضروریات کے لیے کافی ہے؟ اور ریسرچ بتاتی ہے کہ تنہائی صحت کے لیے مضر ہے. ملیے گا سنگاپور کی بلنڈا لو سے، جنہوں نے تنہائی سے نمٹنے کے لیے پینٹ برش کا سہارا لیا. حکومت پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے ایکشن ایڈ اور پلان انٹرنیشنل سمیت 2 درجن سے زیادہ بین الاقوامی غیر سرکاری امدادی اداروں کو کام کرنے سے روک دیا تھا. ان میں سے بیشتر NGOs ملک کے پسماندہ علاقوں میں کام کر رہی تھیں. ان تنظیموں کے کام کی نوعیت کیا تھی اور انہیں پاکستان میں کام کرنے سے روکنے کے ملک کے سماجی شعبے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے اس بارے میں صحرائے تھر سے ریاض سہیل کی رپورٹ. دیارہ مینگواڑ کاشت کے لیے پہلے بارش کا انتظار کرتے تھے، لیکن اب انہیں ایسا نہیں کرنا پڑتا. وہ زیر زمین کھارے پانی کو استعمال کر کے یہ سبزیاں اگا لیتے ہیں. تھر کے اس علاقے میں پانی 400 فٹ زیر زمین موجود ہے، جسے نکالنے کے لیے شمسی توانائی کا استعمال کیا گیا. 15 گاؤں کی آبادی اب اس جیسے منصوبے سے مستفید ہو کر تازہ سبزیاں حاصل کر رہی ہے. اس کی تربیت انہیں اویئر نامی تنظیم نے فراہم کی. ہم گاجر، مولی، پالک، سرسوں اور پیاز کی کاشت کرتے ہیں. اس میں سے کچھ گھر میں استعمال کرتے ہیں، باقی فروخت کر کے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں. رضیہ سان 3 بچوں کی ماں ہیں. بچپن میں تعلیم حاصل نہیں کر سکیں، لیکن اب انہوں نے یہ شوق پورا کر لیا ہے. اویئر کے ایسے 9 سینٹرز ہیں جہاں تعلیم بالغان، معلومات اور مقامی الفاظ اور ماحول کی روشنی میں دی جا رہی ہے. ہم اب گھر کے راشن کا حساب کتاب خود کر لیتی ہیں. اس کے علاوہ مرد شہر سے جو جلد بازی میں دوا لے کر آتے ہیں، اب ان کی ہم مدت میعاد بھی پڑھ لیتی ہیں. پہلے ہمارے شناختی کارڈ پر انگوٹھے کے نشانات تھے، لیکن اب ہم دستخط کر سکتی ہیں. تھر کے پسماندہ علاقے میں یہ منصوبے ایکشن ایڈ نامی تنظیم کی مالی مدد سے شروع کیے گئے، جس کو حکومت پاکستان نے کام کرنے سے روک دیا ہے. نتیجے میں ان منصوبوں کا مستقبل تاریک ہو چکا ہے. کیا حکومت ان منصوبوں کو خود سنبھال سکنے کی اہلیت رکھتی ہے؟ لیکن آپ دیکھیں گے ان کی طرف سے اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں ہے. مثال کے طور پہ جو تھر کی میل نیوٹریشن کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو میڈیسن تو دے رہا ہے، جو ہے فوڈ سپلیمنٹ، اس طرح کے جو ٹیبلٹس وغیرہ وہ دے رہا ہے، لیکن یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں. تھر میں جو ایگریکلچر ایکسٹینشن ہے یا ایگریکلچر ریسرچ، اس کا کام آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. اب یہ ہے ان اداروں کا حال. باقی جہاں تک ہے پینے کا پانی ہے یا ایجوکیشن ہے یا باقی سروسز ہیں جیسے الیکٹریسٹی ہے، یہ تو یہ شہروں تک محدود ہے. بنیادی سہولیات اور انسانی حقوق ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن مبصرین کے مطابق ان کی فراہمی میں کمزوری کی وجہ سے غیر سرکاری تنظیموں کا ان شعبوں میں کردار سامنے آیا. نتیجہ یہ ہوا کہ شعور، آگہی اور سماجی مواقع ملنے پر لوگوں نے ریاست کے کردار پر سوالات بھی اٹھائے. یہ صورتحال بظاہر ریاستی اداروں کے لیے قابل قبول دکھائی نہیں دیتی. ریاض سہیل، BBC نیوز، چھاچرو. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی. نورانی صاحب سربین میں خوش آمدید. وہ کشمیر کا زلزلہ ہو، 2010 میں آنے والا سیلاب ہو، NGOs نے ہمیشہ بحالی کے لیے کام کیا ہے اور جو حکومت وقت ہے اس نے تسلیم بھی کیا جو ان کا کردار تھا اس کو. اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ان کا جو کام ہے اس پر شک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، آپ کو اس کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے کہ اوور آل کنٹری کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں پر ہر ملک میں دخل اندازی ہو رہی ہے. جو پاکستان کے ایکسٹرنل دشمن ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بلوچستان میں بھی کرا رہے ہیں، انٹیریئر
पाकिस्तान में भी करा रहे हैं और आपको हादसे नज़र आ रहे हैं, टेररिज्म नज़र आ रहा है, तो गवर्नमेंट ज़ाहिर है कि इस वक्त सेंसिटिव है, मोहतात है। और आप ये अप्रिशिएट करेंगे जो इंटरनेशनल NGOs हैं, ज़ाहिर है ज़्यादा जो है अच्छा काम करती हैं, मगर उनमें भी किसी को प्लांट करना जो कि हर जगह जा सके और एक अच्छे काम का उसको बज़ाहिर काम करने का उसका हो, लेकिन तो वो इस तरह की कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस या इल्ज़ामात तो नहीं लगे ना इन NGOs पे। और ये जो NGOs हैं ये दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में काम करती हैं। इस तरह की शिकायत जिस तरह की पाकिस्तान को इनसे हैं, दूसरे मुल्कों से तो शायद इन्हें इस शिद्दत से नहीं मिलती ना। देखिए, मुझे दूसरे मुल्कों का तो मुझे नहीं पता कि उनके यहाँ इंटरनल हालात शायद पाकिस्तान जैसे नहीं हैं कि जिस शिद्दत से पाकिस्तान कर रही है, मगर इशू ये है कि मैं समझता हूँ कि ये आप इसको टेम्परेरी फेज़ भी समझ सकती हैं। कई दफ़ा जब ये हालात से आप हो रहे हों, आपकी चारों तरफ सिक्योरिटी ब्लास्ट्स हो रहे हों और आपको दुश्मन आपको ओपनली थ्रेटन कर रहा हो, तो यू आर सेंसिटिव। और इसमें जो हमारी स्पेशली तो सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री है और उनको मैं समझता हूँ कि ज़्यादा रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, आपने सोशल वेलफेयर का जिक्र किया, ये जिस तरह का काम कर रही थी, अगर रियासत वो सहूलियात नहीं फ़राहम कर सकता है, उनका मुतबादल नहीं फ़राहम कर सकता, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि कोई ऐसा तरीक़ा ढूंढना चाहिए था जिससे शायद वो काम मुतासिर ना हो कम से कम? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो बैन की गई हैं ये चंद NGOs हैं। मेरा ख्याल है अक्रॉस द बोर्ड सारी इंटरनेशनल NGOs बैन नहीं की गई हैं। इन्होंने जो टोटल लिस्ट है उसमें से चंद NGOs बैन की हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि जब ये एक दफ़ा 6 महीने साल के बाद हालात कुछ बेहतर होते हैं, आई एम श्योर कि ये NGOs के केस रिकन्सिडर होंगे, और अगर उनमें से कोई ऐसी हैं जिनके बारे में कोई मतलब जो रिव्यू का पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। बट आप देखिए कि सोशल वेलफेयर का काम दुरुस्त है कि अच्छा है, मगर स्केल। इस्लामाबाद से तस्नीम नूरानी साहब हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। हम माज़रत ख़्वाह हैं, किसी वजह से कुछ लम्हों के लिए आप उनकी आवाज़ साफ़ नहीं सुन पाए, लेकिन आइए अब दीगर अहम खबरों पर एक मुख्तसर नज़र डालते हैं। अमरीकी नायब सदर माइक पेंस ने ऐलान किया है कि तल अबीब में कायम अमरीकी सफारत खाना 2019 के इख्तिताम से पहले यरूशलम या मकबूजा बैतुल मक़दिस मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये बात उन्होंने इसराइली पार्लियामान से खिताब में कही। इस दौरान अरब अरकान ने यरूशलम फ़लस्तीन का दारुल है के बैनर्स उठा रखे थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि नीला हेलमेट और उसका परचम अब अमन फ़ौज की हिफाजत की ज़मानत नहीं रहे। सेक्रेटरी जनरल के हुक्म पर तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अमन फ़ौजियों को ख़तरे से निमटने के लिए ज़रूरी हो तो ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। जापान के एक स्की रिजॉर्ट में बर्फानी तूफान की वजह से कम एक फ़ौजी हलाक और 14 दूसरे अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ख्याल है कि 70 से ज़्यादा स्कीयर्स एक पहाड़ी रेस्ट हाउस में फंस गए हैं। तूफान का सबब एक आतिश फशां का फटना बताया जा रहा है। अमेरिका की रियासत अलास्का में 7.9 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद सुनामी के ख़तरे का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ कोरियाक के कस्बे से 300 किलोमीटर जनूब मशरिक़ में 25 किलोमीटर की गहराई पर था। इसके अलावा आज सुबह इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 बताई गई है और इसका मरकज़ बहरे हिंद बताया जा रहा है। गुज़श्ता चंद बरसों से गवादर शहर को पानी की शदीद किल्लत का सामना है। पानी की तरसील टैंकर्स के ज़रिए तुर्बत से की जाती है और महंगे दामों वहाँ के शहरियों को ये पानी ख़रीदना पड़ता है। रवां माह चाइना ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी ने गवादर पोर्ट में डीसैलिनेशन प्लांट नस्ब किया है, जो 80 पैसे फ़ी गैलन पर रोज़ाना 2.5 लाख गैलन पानी फराहम करेगा। लेकिन मकामी लोगों को इस प्लांट से ज़्यादा उम्मीद नहीं है। गवादर से नमानिगार सहर बलोच। हाजी गंगुजार 2 साल में 6 बार पानी की किल्लत की वजह से नकल मकानी कर चुके हैं। गवादर के नवाही इलाके डगारों के रिहायशी गंगुजार खेती बाड़ी के लिए अपने हमसायों के साथ मिलकर 12,000 रुपए तक का टैंकर मंगवाते हैं, जो सिर्फ 5 दिन काम आता है। लेकिन इस बार पानी की किल्लत की शिद्दत और पैसे न होने के बायस गंगुजार एक बार फिर नकल मकानी करने का सोच रहे हैं। अभी सरकार को पानी दे रहा है, पहले अगर सरकार नहीं देता है फिर मैं
इस जगह छोड़ता है दूसरा जगह जाता है, वो जगह में पानी होएगा उधर जाता है, टाइम पास करता है, झोपड़ी बनाता है, वक्त में गुजारता है, मजबूर है। पाकिस्तान के उभरते हुए इस सनती मरकज़ ग्वादर में पानी की फराहमी का इन्हिसार आकड़ा डैम पर है, लेकिन 2016 से बारिशों में वाज़े कमी के बायस अब आकड़ा डैम में भी पानी ना होने के बराबर है। रवा माह चाइना ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी ने ग्वादर पोर्ट में डीसैलिनेशन प्लांट नस्ब कराया है, जो 80 पैसे फ़ी गैलन पर रोज़ाना 2,54,000 गैलन पानी फराहम करेगा। हुकूमत का दावा है कि इस नए प्लांट की वजह से डैम्स पर इन्हिसार कम हो जाएगा। गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि 50 लाख गैलन का डिसलिनेशन प्लांट लगाए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान प्लान कर रहा है, और उसके लिए नेसेसरी जो सर्वे वगैरह है, जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये अप्रूवल के स्टेज में है, होपफुली बहुत जल्द ये अप्रूव हो जाएगा। तो 50 लाख गैलन का जब डिसलिनेशन प्लांट लग जाएगा तो फिर ये है कि हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ डैम्स पे नहीं रहेगी, फिर हमारे पास अल्टरनेट सोर्स भी होगा। तो सवा डैम से अभी पाइप बिछाई जा रही है और होपफुली ये 4-5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, और इसी पाइप को फर्दर हम एक्सटेंड करेंगे शादीकोट डैम तक। तो फिर जब भी एक दफ़ा बारिश हो जाए तो आप यूँ समझे कि फिर 5 साल के लिए हमारे पानी का मसला रिजॉल्व हो जाता है। मौजूदा वक्त में ग्वादर के लोगों के लिए पानी तुर्बत के नवाही इलाके दश्त में वाक़ई मीरानी डैम से टैंकर्स के ज़रिए लाया जाता है। ये पानी लोगों तक 6 घंटों में पहुंचता है। कभी डीजल का बदबू करता है, कभी वो गंद के बदबू करता है, 2 दिन रहता है, तीसरे दिन में बदबू करता है, बच्चे पी लेते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो उल्टी जुलाब होता है, कभी खांसी, कभी बुखार, इसी की पानी की वजह से। नए डीसैलिनेशन प्लांट से शहर में पानी की दस्तयाबी की उम्मीद तो पैदा हुई है, ताहम पानी की अदम दस्तयाबी भी ग्वादर की तरक्की की राह में एक रुकावट है। सहर बलोच, BBC न्यूज़, ग्वादर। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, कसूर में कमसिन ज़ैनब के साथ जिनसी ज़्यादती और कत्ल के केस में अहम पेशरफ्त, पुलिस का दावा कि उन्होंने मुश्तबा मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया है। और मिलेगा सिंगापुर की एक ऐसी माँ से जिन्होंने तन्हाई का हल रंगों में ढूंढा। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। पाकिस्तान के शहर कसूर में पुलिस ने कमसिन ज़ैनब के कत्ल केस के मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ताहम पुलिस के मुताबिक इस बात की तस्दीक मुल्ज़िम के DNA टेस्ट का नतीजा आने के बाद ही हो पाएगी। हमारे नामानिगार उमर दराज लाहौर स्टूडियो से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, सबसे पहले तो यही बताइए कि ताज़ा तरीन इत्तलात इस वक्त क्या हैं आपके पास? इस वक्त लाहौर में हम वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक वो 7 बजे उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी अपने मॉडल टाउन के ऑफिस में, जहां पर ज़ैनब के वालिद को पहले से पहुंचा दिया गया है। और मेरी मालूमात के मुताबिक आज सुबह ही से पुलिस की जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो गिरफ्तार किए गए शख्स को लेकर लाहौर पहुँच चुकी थी। ताहम क्योंकि वज़ीर आला पंजाब लाहौर में मौजूद नहीं थे तो उनकी वापसी का इंतज़ार किया जा रहा था ताकि वो खुद बाज़ाब्ता तौर पर इस गिरफ्तारी का ऐलान करें। उसके अलावा पुलिस जो है वो इस मामले पर फिलहाल जी नहीं, मैं यही पूछना चाह रही थी कि ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हुई जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपकी पुलिस में भी कुछ ज़राए से बात हुई है, वो क्या कह रहे हैं? जी, जो चंद पुलिस अफसरान जिनसे मेरी बात हुई वो अपना नाम ज़ाहिर नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको सख्ती से मीडिया से बात करने से मना किया गया और गुज़िश्ता चंद घंटों से किसी पुलिस अफसर से हमारी बात नहीं हो पा रही थी। ताहम जो मेरी बात हुई उसके मुताबिक ये कंफर्म किया गया कि जिस शख्स को गिरफ़्तार किया गया है इसके DNA टेस्ट किए गए थे जिनका मैच हो गया था जो कातिल के DNA मौजूद थे उनके साथ, और उसके बाद ही इसको हतमी तौर पर गिरफ़्तार किया गया और इसको लाहौर से बाहर से गिरफ़्तार किया गया क्योंकि ये फ़रार हो गया था। और पुलिस के मुताबिक अभी इसकी कुछ रिपोर्ट्स जो हैं फोरेंसिक लेबॉर्ट्री से आना बाकी हैं। गालिबन ये वो टेस्ट हैं जो बाकी लड़कियों के DNA के साथ मैच किए जा रहे हैं और उसके बाद हतमी तौर पर ये कहा जा सकेगा कि वही शख्स है जिसको मरकज़ी मुल्ज़िम करार दिया जा सकता है। अच्छा, और पुलिस इस बारे में कुछ कह रही है कि इतना वक्त क्यों लगा उनको इस मुल्ज़िम तक पहुंचने में? पुलिस इस हवाले से कुछ बताने से कासिर है। ताहम जो चंद अफराद इसमें जो पुलिस के अफसरान इसमें तफ्तीश में शामिल थे उनके मुताबिक वो एक बहुत लंबा प्रोसेस था जिसके ज़रिए DNA टेस्टिंग की जा रही थी और लोगों के टेस्ट मैच किए जा रहे थे, लेकिन इससे कबल किसी भी गिरफ़्तार किए गए मुल्ज़िम का DNA कातिल के DNA से मैच नहीं हो पाया। इसके अलावा उनके पास बहुत कम एविडेंस थी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसे कहा जाता है, जिसको के ऊपर वो काम करते हुए इसको पकड़ सकते थे। एक प्रॉब्लम ये था कि जो वहाँ के मकामी लोग हैं वो भी सामने नहीं आ रहे थे और पुलिस के साथ ताउन नहीं कर रहे थे।
کوئی واضح شواہد یا عینی شاہدین موجود نہیں تھے جس کی مدد سے کہ اس کا سراغ لگایا جا سکتا. لاہور سے امید اعظم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے. پتہ ہے youtube.com/BBC اردو. بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے بارے میں اداکارہ اور ایکٹیوسٹ نادیہ جمیل کے ساتھ خصوصی انٹرویو بھی ہمارے پیج پر موجود ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اور تنہائی محض ایک احساس نہیں ہے، یہ آپ کی صحت کے لیے بھی مضر ہو سکتی ہے. تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ تنہائی کا ایک دن 15 سگریٹ پینے، ایک روز کی شراب نوشی اور ورزش نہ کرنے کے برابر ہے. اور یہ بات سنگاپور کی سابق ٹیکس افسر بلنڈا لو سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. انہوں نے 50 سال کی ہونے کے بعد پینٹنگ شروع کی اور اب ان کا کام سنگاپور میں ہر جگہ دیکھا جا سکتا ہے. بلنڈا لو کی کہانی نصرت جہاں کی زبانی. میرا نام بلنڈا لو ہے. مجھے حالات نے مصور بنایا. میں نے تنہائی دور کرنے کے لیے چند سال پہلے ہی پینٹنگ شروع کی اور اب یہ میرا جنون بن چکا ہے. جب میں پینٹنگ کرتی ہوں تو خود کو آزاد اور دکھ اور پریشانیوں سے دور محسوس کرتی ہوں. میں اپنے بیٹوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، ان کے لیے کھانا بناتی تھی اور ان کا ہر کام کرتی تھی. لیکن بعد میں مجھے لگا کہ ان کی اپنی الگ زندگی ہے اور آخر میں گھر پر تنہا رہ گئی. اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے میں نے پینٹنگ شروع کر دی. ان پینٹنگز میں زیادہ تر ایسی چیزیں ہیں جو میں اپنے بچپن میں کیا کرتی تھی. میں اپنی یہ تمام یادیں ان دیواروں پر پینٹ کرنا چاہتی ہوں. میرے لیے یہ بہت خوشگوار زمانہ تھا. میرے خیال میں یہ جنون ہم سب میں ہوتا ہے، بس اسے آزاد کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہمیں کس چیز کا شوق ہے. جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا جنون کیا ہے. اگر آپ سچے دل اور محنت سے کام کریں تو حالات خود بخود آپ کے حق میں بہتر ہوتے جائیں گے. بلنڈا لو. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ ناز کی. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. عالیہ ناز کی کو اجازت دیجیے.